हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट रुखसाना एमनवेल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूवर्स, क्रिसमस के सेलिब्रेशन, क्रिसमस के प्रोग्राम्स अपने अरूज पर हैं। आज इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। यहाँ पर बैनुल मज़ाहिब एक क्रिसमस का प्रोग्राम अरेंज किया गया, जहाँ पर नवीद अंथनी साहब और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर उलमा ने भी आकर ख़ताब किया। यहाँ पर हिंदू मज़हब, सिख मज़हब और दूसरे तमाम मज़ाहिब से, इसके साथ साथ पाकिस्तान की कराची की जो हुकूमती मशीनरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमारे साथ रहें, आइए देखते हैं।
क्या बोलेंगे? हुए, ठीक है ना, हुए, ताकि फिर आप लोग को तो एंजॉय करने से माशाल्लाह एंजॉय तो आप कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ गाने में आप लोग भी मेरे साथ
कोआ रहमान जे पासे कोआ भगवान जे पासे मुंहिंजो सजदो उन्हीअ खे आहे जेको आहे इंसान जे पासे. Assalamu alaikum, namaste, and a very good afternoon to all. I am Naila Pamhar, Project Manager at Civil Society Support Program. I welcome you all in the celebration of Christmas Eve and New Year 2023. Christmas is an annual festival that is celebrated in the birth of Jesus Christ every year on 25th of December. I welcome all our distinguished guests, respected Allama Masood Jamal, respected Reverend Daniel Fias, Honorable Pandit Mukesh Kumar Maharaj, Honorable Veerji Kohli, respected Esther Shakil, Honorable Magan Singh, respected Khair Mohammad Kolachi, respected Mubashir Malik to join us in the evening. This program is jointly organized by Civil Society Support Program and Government of Sindh Culture Department and Mr. Veerji Kohli, Advisor to CM Sindh, in collaboration with Umarkot Citizen Forum and District Women Group and Pakistan Christian Business Forum. आइए हम रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर, ईश्वर के हुजूर और तमाम कौमों के रब परवरदिगार आलम के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रोग्राम का आगाज़ खुदावंद के बाबरकत नाम से करें. खुदावंद बैरोबर के खालिक, मालिक और परवरदिगार, तू हमारा रब है. कभी तो हय्युल कय्यूम और सादिकुल कौल के नाम से पहचाना जाता है, कभी तो परवरदिगार के नाम से जाना और पहचाना जाता है, कभी तो ईश्वर के नाम से मासूम किया जाता है. ऐ हमारे रब, हम तेरी बारगाह अक़दस में झुक जाते हैं, तेरी ज़ात बारी को सजदा अदा करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम तेरे बाबरकत नाम से करते हैं. खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में, आमीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم جزاک اللہ. کل توکھے ڈٹھو موں دیارے جیاں کل توکھے ڈٹھو موں دیارے جیاں شہر دیا رہو روشن ہر دری. اسی کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گی رسپیکٹڈ ہندو اسکالر پنڈت مکیش کمار مہاراج سے کہ وہ آئیں اور بھگوان کی آرتی کریں. جے شری کرشنا. آپ تمام معزز گرامی اور جتنے آپ وراجمان ہیں میرے عزیز اور خاص طور پر میرے بڑے محترم ویر بھائی اشوک صاحب اور جتنے بھی محترم ہیں ان سب کو میں نمسکار کروں گا. اور آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج میری کرسمس کا دن ہے. تو آج اس خوشیوں کے اندر آپ نے ایک ایسا پاکستان کا گلدستہ سجایا جس کے اندر تمام مذہب کے لوگ ہیں اور تمام فکات کے لوگ ہیں. آپ زوردار سب کے لیے تالیاں, کیونکہ یہی ہمارے پاکستان کا گلدستہ ہے, یہی حسین گلدستہ ہے, یہی پاکستان کی پہچان ہے. تو ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم پرارتھنا کریں گے. تو میری کرپا ہے, تھوڑی میوزیشین سے پرارتھنا ہے کہ وہ آئے اور تھوڑا سا ایک ہماری ایک آرتی ہے, پوتر آرتی ہے جو پورے ورلڈ کے اندر گائی جاتی ہے, جس کے اندر ایک میسیج ہے امن کا, محبت کا, پیار کا, ایک درس ہے. تو اس آرتی سے ہی ہم جو ہے اس پرارتھنا کا آغاز کریں گے. اور یہ کرپا کر کے آپ سب ان شبدوں کو سنیں گے تو سننے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا, ایسا لگے گا کہ سب ایک ہیں. جے یسو کی, ہر شے یسو کی. تو اسی پرکار سے تمام چیزیں پرماتما کی ہے, ایشور کی ہے, خدا کی ہے, لیکن سمجھنے کا ہمارا بھید ہے. بولو کرشنا کنیا لال کی جے. اوم جے جگدیش ہرے سوامی جے جگدیش ہرے بھکت جنوں کے سنکٹ داس جنوں کے سنکٹ چھن میں دور کرے. اوم جے جگدیش
ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, हो प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे, भणत शिवानंद स्वामी, भणत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हे प्रभु जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पाकिस्तान, आवाज नहीं आई, पाकिस्तान। धन्यवाद। मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमें अभी हमारे कुछ गेस्ट ने ज्वाइन किया है, ऑनरेबल अफजल बशीर साहब एंड ऑनरेबल मिस्टर अशोक। क्रिसमस दिन है खुशियाँ बांटने का और खुशियाँ मनाने का। अभी हमारे पास एक क्रिसमस सॉन्ग की परफॉर्मेंस है फ्रॉम शाहिद एंड ग्रुप। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वेलकम देम ऑन स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। शाहिद एंड ग्रुप। उसी के दर पे आ
देखो आई है रात क्रिसमस की खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के। गुनगुनाती है रात क्रिसमस की खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। सहराए आया है खुदा, सारे जग का आज मुरादी धरनी में पैदा हुआ। सारे जग का आज मुरादी धरनी में पैदा हुआ। इन खुशियों में कौन झूम झूम कर, इन खुशियों में झूम झूम खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। नगमों की है रात, नगमा दर्द है हंसी हंसी सहरा हमें हमारे और कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है जिनका मैं वेलकम करना चाहूँगी, मिस्टर परवेज हबीब एंड सैयद मखदूम अली रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें मिस एस्टर शकील जो कि एज जनरल सेक्रेटरी काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन ग्रुप उमरकोट में, मेंबर ऑफ उमरकोट सिटीजन फोरम में हैं और साथ साथ वो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए उमरकोट में बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। मैं उन्हें गुजारिश करूँगी कि वो वेलकम नोट के लिए स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएँ। प्लीज़ वेलकम मिस एस्टर शकील।
अस्सलाम वालेकुम, भली खुश आमदीद। जितने गेस्ट यहाँ पर बैठे हैं जो दूर दराज से भी आए हैं, मैं उनको सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और स्पेशली जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे पास्टर साहबान और ख़ास जो हमारे मेहमान हैं, मैं उन सबको वेलकम करना चाहती हूँ और आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ कि आप सब मिलकर हमारी इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हैं। थैंक यू सो मच। आपका यहाँ आना हमारे लिए खुशी का बायस है। और मेरा नाम एस्टर शकील है और मैं उमरकोट में डिस्ट्रिक्ट वुमेन ग्रुप की जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हूँ। और मेरे साथ दो और मेंबर हैं यहाँ पर, सीनियर मेंबर हैं। जन्नत कायम खानी और इसके साथ साथ रुबीना जो है, रुबीना कायम खानी जो एक नायब सदर हैं और एक जो सदर के तौर पे काम कर रही हैं। और ये 13 मेंबर हैं हम लोग ख़वातीन की। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग ख़वातीन के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं हम उन पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये एक कम्युनिटी के लिए काम किया जाता है, बल्कि जॉइंट जो प्रोग्राम्स हैं या मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और उसमें जैसे मुख्तलिफ इवेंट्स भी आते हैं। अभी गुज़रे दिनों में होली दिवाली का प्रोग्राम था, तो हम सब ने ख़वातीन ने मिलकर एक ख़वातीन के लिए हमने एक बहुत अच्छा उमरकोट में एक बड़ी शानदार हमने सेलिब्रेशन की। और इसके साथ साथ जब ईद मिलादुन नबी पे भी हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया। और इसके साथ लास्ट ईयर में भी उमरकोट में क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट की गई। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में जब फ्लड का भी काम था, तो इन 13 ख़वातीन ने अपने तौर पर भी और मिलकर हमने सब ने उन ख़वातीन के लिए जो इस दूसरे दूर दराज एरिया से उमरकोट के जो टीले हैं वहाँ पर बैठी हुई थी और टेंट में हमने उनको सर्व किया, उनकी खिदमत की और जो कुछ हमसे हो सकता था हमने वो चीज़ें इकट्ठी की और उस मुश्किल घड़ी में उनकी हमने मदद की। तो इस तरह से ये ख़वातीन का जो ग्रुप है वो वहाँ पर उमरकोट में डिस्ट्रिक्ट वुमेन का ग्रुप जो है ये वहाँ पर काम कर रहा है। और इसी तरह से सिटीज़न फोरम जो मेल मेंबर हैं वो भी इसी तरह से ही काम कर रहे हैं। और उनकी अपनी जो है वो जो मेल साइड है वो उनको देखते हैं और हम जो 13 ख़वातीन हैं हम फीमेल साइड को देखती हैं। मुख्तलिफ जो उनके इश्यूज़ हैं जैसे अर्ली मैरिज पे भी है और तशद्दुद है और एजुकेशन है और इस तरह के और मुख्तलिफ जो ख़वातीन के जो मसाइल भी हैं, जो उनके इशू होते हैं वो हम हल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर मैं आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी एक क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन होते हुए बतौर जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया गया है उस लिहाज से मेरा दिल जो है वो खुशी से भरा हुआ है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, आपका आना हमारे लिए बाइस मुसरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एस्टर शकील। जहाँ हम ख़वातीन कहते हैं मसलों की बात करते हैं, वहाँ उमरकोट जैसे इलाके में हमारे पास 13 ख़वातीन मौजूद हैं जो औरतों के लिए ही बात कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि वो 13 ख़वातीन यहाँ मौजूद नहीं हैं, बस उनको सराहाया जा सकता है एक ज़ोरदार तालियों की आवाज़ के साथ। ये तालियां उन पर जाएंगी कि 13 ख़वातीन, 2 यहाँ मौजूद हैं, ये 2 अगर 2 हमारे साथ खड़े हो जाएं जो 13 में से हमारे पास मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग उमरकोट से आए। समाज में इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे मसले मौजूद हैं। हमारे समाजी मसले हैं, सियासी मसले हैं और हमारे पास मुआशी मसले भी हैं। सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम पिछले 10-12 सालों से अपना काम सरअंजाम दे रहा है, उन मसलों में अपना हल तलाश करने के लिए उन मसलों में अपना किरदार अदा कर रहा है कि किस तरीके से वो इन मसलों का हल तलाश कर सकते हैं या समाजी या सियासी तौर पर वो अपना कहाँ किरदार अदा कर सकते हैं। फॉर अ वेलकम नोट ऑन बिहाफ ऑफ CSSP and to discuss about the objectives of the program, I would request Honorable Mr. Noor Mohammad Bajeer,
CEO of Civil Society Support Program to please proceed towards the stage. मोहतरम अल्लामा डॉक्टर मसूद जमाल साहिब, रेवरेंड डॉक्टर डैनियल फयाज साहिब, ऑनरेबल वीर जी कोहली साहिब, अशोक जेठमालानी साहिब, एस्टर शकील, मिस्टर परवेज गिल साहिब, खैर मोहम्मद बोलाची साहिब, मुबशिर मलिक साहिब, मगन सिख साहिब, अनवर लाल दीन साहिब, अफजल बशीर साहिब, पंडित मुकेश कुमार साहिब, मखदूम रियाज साहिब, और मैं नाम अगर नहीं ले सका हूँ उसके लिए माजरत, सारे मोहतरम हैं हमारे लिए, और ख़वातीन व हज़रात, ख़ास तौर पे हमारी बहनें जो उमरकोट से आई हैं, इनके जानिब से मैं आपको वेलकम कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे हमारे उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ख़वातीन का ग्रुप है, जिसको लीड एस्टर शकील और उसकी 7 और बहनें कर रही हैं, वो हर साल उमरकोट में इस किस्म के फेस्टिवल करते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने ये तजवीज़ दी कि हम कुछ कराची की सोसाइटी, कराची के जो लोग हैं, उनके साथ बैठकर भी हम ये खुशियाँ मनाएं। तो पहले हमने इसी हाल में उमरकोट डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की थी, और अभी वो उमरकोट के साथी कोई 30-35 आए हैं वहाँ से, और आपसे अपनी खुशियाँ बांटने आए हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी जानिब से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इसके लिए ताली बजाएं। हो गए आपको पैदा हुए, और आपकी विलादत का और आपकी पैदाइश का जश्न जो अहले अदब है उन्होंने मनाया, और बड़ी पोस्टें चली 27 दिसंबर के दिन, मगर थोड़ा सा, चूँकि शहीद जमहूरियत मेरे कायद बेनज़ीर भुट्टो अलैहिर्रहमा की शहादत का दिन है, तो उनके एहतराम की वजह से वो पोस्टें थोड़ी सी देर से चली। 15 साल से होता यह है कि गालिब का जब जन्मदिन आता है तो 27 दिसंबर ही है, तो वो थोड़ा सा लेट सवेर चलती हैं, बीबी शहीद की शहादत के एहतराम के पेश नज़र। तो गालिब का अल्लामा हसन सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो गालिब की बड़ी मशहूर बात है कि गालिब से किसी ने पूछा कि मिर्ज़ा नौशाद, सुना है आप ईद नहीं मनाते, बहुत अहम बात है, लेकिन इतने बड़े अदीब और इतने बड़े अपने वक्त के इमाम ने, उर्दू अदब के इमाम ने कितनी खूबसूरत बात दी, जिससे तमाम चीज़ें समझ में आती चली गई। तो गालिब से किसी ने आकर पूछा कि मिर्ज़ा नौशाद, हमने सुना है आप ईद नहीं मनाते हैं। तो गालिब ने उसकी तरफ देख कर कहा कि ईद मनाता हूँ मगर एक नहीं मनाता, सब मनाता हूँ। और मिर्ज़ा गालिब बड़ा, यानी जो ड्रामा है नसीरुद्दीन शाह साहिब ने उसमें जो किरदार अदा किए, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त और मारिकतुल आरा काम है गुलजार साहिब का, तो वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो मिर्ज़ा गालिब ने एक बात कही कि ईद मनाता हूँ मगर हाँ एक नहीं मनाता। तो ये जो तमाम ईदें मनाने का जो सिलसिला था, ये सिंध के अंदर नया नहीं, ये बड़ा कदीम है। जब सिंध में क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आई थी, तो मैं आपको कम बेश 350 साल पहले ले जाता हूँ। तो सिंध के अंदर सनातन धर्म, जो धरती के असल बाशिंदे हैं, सिंध के जो असल मालिक व वारिस हैं, कोली, भील, मेघवाड़, माली, मननहार, मीर बहर मल्ला, और उसके बाद ही मिशनरी। तो उस समय सिंध के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं थी, सनातन धर्म मौजूद था, जैन मत मौजूद था, मुस्लिम मौजूद थे, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज बाद में है। तो तब एक सिंध का बड़ा सूफी, जिसके लिए सिद्दे हसन जैसे ने मज़ामीन लिखे हैं, हज़रत सूफी शाह इनायत शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सिंध का सूफी आज़म कहा जाता है,
انہوں نے ایک جماعت قائم کی اپنے مریدین کی، اور ان کو ایک نعرہ دیا کہ آپ یہ نعرہ لگائیں گے جہاں اسپرچولیٹی آپ اپنی زندگیوں میں لائیں گے، یہ گہرے کلر کا لباس پہنیں گے، اس میں جین تھے، اس میں سناتن دھرم کے لوگ ہندو تھے، ان میں مسلمان تھے، اور ایک جماعت قائم ہوئی، اور جماعت کو جہاں اپنے روحانیت کے دروس ارشاد فرمائے اور روحانیت کے اسباق پڑھائے، وہیں آپ نے انہیں ایک نعرہ دیا کہ جے کو کھیڑے سو کھائے، جو اگائے گا وہ کھائے گا۔ اور آج بھی حضرت شاہ عنایت شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار یا دربار گوہربار مرجع خلائق ہر خاص و عام ہے جھوک شریف، اور آپ دادی نے گایا ہے کہ کس نے جھوک میرے ساتھ جانا وہ میرے ساتھ چلے۔ تو اس جھوک شریف کی ہستی صوفی شاہ عنایت شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے نام جی ایم سید ایسے مفکر نے اپنی کتاب جیسا میں نے دیکھا منسوخ کی، تو انہوں نے یہ نعرہ بھی دیا۔ Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Hark now, hear the angels sing, a King was born today. We'll live forevermore because of Christmas Day. Watch, look, watch, their thoughts by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a King was born today. We'll live forevermore because of Christmas Day. We wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے سندھ، ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے، اور سندھ ملٹی لنگول سوسائٹی ہے۔ سب زبانوں کے بولنے والے، کبھی وہ گجراتی بولتے ہیں، کبھی وہ ڈھاٹکی بولتے ہیں، کبھی وہ مارواڑی بولتے ہیں، کبھی وہ پخیر راغلے بولتے ہیں، کبھی وہ پشتو میں کہتے ہیں استاکل کنزی، آپ کہاں سے آئے ہیں۔ زبانوں کا گلدستہ ہے، کلچر ود ان دا کلچر۔ اور حضرت داؤد زبور شریف میں فرماتے ہیں کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، اس سے بڑی خوبصورت بات اور کوئی نہیں۔ ہم سب رب کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہندو دھرم کے لوگ رب کو ایشور کہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی رب کو اللہ کہتے ہیں، کسی طرح کا ابہام
नहीं होना चाहिए। और अगर मसीही रब को कादर मुतलक खुदा कहते हैं तो किसी किस्म का अबहम नहीं होना चाहिए, हस्ती एक ही है। अब मैं आता हूं ईमान पर। हम में से किसी को कोई हक हासिल नहीं कि हम किसी के ईमान की नफी करें, और ईमान पर बड़े झगड़े भी होते हैं। अक्सर औकात ये कहा जाता है जी इस्लाम में बड़े फनेटिक्स हैं। फनेटिक्स हर मजहब में पाए जाते हैं, हिंदुइज्म में भी पाए जाते हैं, मसीहियों में भी पाए जाते हैं। और मैं क्योंकि सूफी पादरी हूं, मैं सूफी पादरी हूं और बुल्ले शाह की एक बात कोट करने लगा हूं, सीना ऐ चणीदा यार मेको मुर्शद वाली तार, मेको अल्लाह वाली तार। रब नहीं है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हिंदू मत में मसीह को बड़ी इज्जत दी गई है। 33 करोड़ अवतार को माना जाता है इनकारनेट ऑफ गॉड, और उसमें उनका बिलीफ यह है कि क्राइस्ट इज वन ऑफ देम। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हजूर अल मसीह को बड़ी इज्जत दी है। मैं कुरान मजीद की एक आयत पढ़ना चाहता हूं। व ईसा इब्न मरियम अल बय्यनाते व आयदनहु बिरूहिल कुद्स, कि जो मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ वो रूहुल कुद्स से है, और उसकी जस्टिफिकेशन इंसानों की जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जब रब ये कह रहा वो रूह है मिन रूह, और वो मेरी रूह से पैदा हुआ, इससे बढ़कर जस्टिफिकेशन और क्या हो सकती है। मसीहों ने बागे दहल कहा, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पहले बाब की पहली आयत में, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और किसी शायर ने कहा, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था, मुश्क नाफा में छुपा था मुझे मालूम न था। और जब इन हकीकतों को जानने की जरूरत है तो फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की फिर मैं आयत कोट करूंगा। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददना अस्फला साफ़िलीन। तो मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात बनाना। जब मैं और आप अशरफुल मखलूकात बन जाएंगे तो मुझे और आपको दूसरे के दीन की इज्जत करना आ जाएगी, और जब इज्जत करना आ जाएगी झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोटेशन देना चाहता हूं, जो आपने फरमाई, लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, रिस्पेक्टेबल। और अगर ये नहीं है तो हम कैसे अशरफुल मखलूकात हैं? एक दूसरे की दीन की इज्जत करना। और उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब का जो शेर है ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। अमल नहीं है तो कुछ नहीं। बहुत लोग बातों में
तो बड़े अक्लमंद हैं, दाना हैं, अमल में देखो तो बड़े नादान हैं। अमल से जिंदगी बनती है, और अगर अमल नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये जब बात हुजूर ने फरमाई तो आप उसके बाद देखते हैं कि एक डेलीगेशन जो मसीही था उसको मस्जिद नबवी में ठहराया गया। इससे बढ़कर इंटरफेथ की और क्या बात हो सकती है। अब आइए मसीहत की तरफ। मैं एक मकाम पर गया और किसी फनाटिक ने ये कहा ये नसारा है, देयरफॉर ही इज काफर। मैं सामी मजहब का एक हिस्सा भी हूं और अहले किताब भी हूं। मैंने कहा जी मैं काफर नहीं। एक बात बड़ी वसूख से कही जाती है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरा करबला में हिस्सा है, मैं हिस्सादार हूं करबला का, क्योंकि जब करबला में यजीदियों ने बाकायदा तौर पर इमाम आली मकाम और उसके खानदान पर जुल्म के तशद्दुद के पहाड़ ढा दिए, तो उस काफले में जॉन था जो करबला में शहीद था। मैं करबला का हिस्सेदार हूं। जब इमाम आली मकाम के सरे मुबारक की बात आ गई तो वहां पर एक पादरी था, उसने इमाम आली मकाम के सरे मुबारक की तजलील नहीं होने दी। और यही इंटरफेथ है। हिंदू बहनें मेरी बहनें हैं, मसीही बहनें मेरी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें मेरी बहनें हैं, यहूदी बहनें मेरी बहनें हैं। और किसी नाहक का खून बहाया जाना वो अशरफुल मखलूकात के तकलीफ किए जाने के खिलाफ है। मैं मुसलमान बहनों की इज्जत और हुर्मत का रखवाला हूं। करबला 4 दफा गया हूं। फतवे लगे, किसी ने कहा यह बेदीन है, किसी ने कहा यह मुसलमान हो गया है, किसी ने कहा कि, और मेरी जिद थी कि मैंने एक पीएचडी जो है ना वो करनी ही करबला पर है। मैंने की, बांगे दाखिल की। इमाम आली मकाम की इज्जतों का रखवाला, हुर्मत का रखवाला, मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूं। और वो ये था, जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम करबला से नंगे सर, जालिमों ने चादर तीर मार मार के उतार दी और शाम तक वो नंगे सर गई। मैं वो पादरी था जिसने अपना ये संचोर फाड़ा। इस संचोर को फाड़कर मैं वो पादरी था जिसने इसको चादर बनाया और हजरत बीबी ज़ैनब के सरे मुबारक पर चादर रखा। अध्ययन आइडेंटिटी है हमारी। हमें कम से कम एक बात पर हम मुत्तफिक हो जाते हैं, लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ाला साफ़िलीन। सबसे बढ़कर कि हम खुदा की बारगाह अक़दस में रब्बुल इज़्ज़त के हाथों में अशरफुल मखलूकात के नाम पर तश्कील दिए गए हैं। हम एक ही आदम की औलाद।
एक ही हवा की औलाद है। वक्त कम है, वरना मैं आपको हमारी जेनेalogy आज पढ़ा कर जाता कि तूफान नूह के बाद 3 बेटों से नस्लें कैसे चली। और सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा दीन मोहब्बत है। हजूर और मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए, कोई आनन फानन वाकया नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस में बाकायदा अंबिया कराम ने आपकी पैदाइश मुबारका पर पेशीन गोइयां की, नबूतें की। और फिर जब हजूर और मसीह की पैदाइश होनी थी, जिब्राइल फरिश्ता ने हजरत बीबी मरियम को गवाही दी, तेरे बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। 750 साल पहले यसाया नबी ने आपकी पैदाइश मुबारका पर बाकायदा पेशन गोई की। और फिर कलाम खुदा फरमाता है, जब वक्त पूरा हो गया तो हजूरुल मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजूरुल मसीह का पैगाम मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हजूरुल मसीह का पैगाम मुआफी है। यहूदी, शरा के आलम, फनेटिक्स, फरसी एक औरत को पकड़ कर ले आए और उसको कहा, हजरत मूसा की शरीयत ये कहती है इसको पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए। लेकिन हजूर और मसीह ने क्या किया? उन्होंने ये मजहब के बड़े बड़े ठेकेदारों के जनाब गुनाह लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने देखा, डैनियल की आदत देखा, ये तो मेरे गुनाह लिख रहे हैं। अंतरी साहब ने देखा कि मेरे गुनाह लिख रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों ने जब अपने गुनाहों को देखा तो वो चले गए। किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। फारसी में एक माकूला, गुफ्तन आसान अस्तो करदन मुश्किल। कहना बड़ा आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। वहां पर हजूरुल मसीह ने क्या फरमाया? जा बेटी सलामत चली जा, लेकिन आइंदा गुनाह न करना। उसका पैगाम मुआफी है, उसका पैगाम मोहब्बत है और उसका पैगाम सब्र है, टॉलरेंस है। मजहब हमें टॉलरेंस सिखाता है, मजहब हमें कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। और हजूर मसीह की तालीम यह थी, अगर तेरे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर देना, कभी तो गुस्सा ठंडा होगा ना। ये है रिलीजन। लेकिन हम साहब रिलीजन है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस्लाम के मानने वाले, क्रिश्चियनिटी के मानने वाले, हिंदुइज्म में तो किसी का खून बहाना बहुत बड़ा पाप है, उसकी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन हम इंसानों का, और ये जो अशरफुल मखलूक आता है, हम इसका खून बहाते हैं। मुआफी नाम की चीज ही नहीं है, सब्र नाम की चीज ही नहीं है। तो रब हमें सिखाता है कि हम टॉलरेंस सीखें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज और माफ कीजिए इख्तिताम इस बात पर करूंगा, इसराइल के बारे में। इसराइल कुरान मजीद ने भी बड़ी इज्जत दी है। बेशक वो उल्टी तरफ चल पड़े, हजरत मूसा कोए सीना पर गए और उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर कहा ये हमारा खुदा है। वो किसी एक खातून गुम हो गई ये फ्लडिंग के दौरान। उसका शौहर ढूंढने के लिए निकला। फ्लड असल में मशरिक की तरफ आया था, वो उसको मगरिब में ढूंढ रहा है। किसी ने कहा अक्लमंद आदमी, फ्लड तो मशरिक की तरफ आया है, तू मगरिब की तरफ। उसने पंजाबी में कहा वो कहेंगी कुछ सी ते कर दी कुछ सी। बनी इसराइल भी यही करते थे, हम इंसान भी यही करते हैं। गुफ्तन आसान तो करदन, कहना बड़ा आसान है। लेकिन वहां पर एक नबी आया, उसका नाम था नहमिया नबी।
हैकल टूट चुकी है, यरूशलेम की हालत तबाह बर्बाद है, हर शख्स परेशान है। काहिन, प्रीस्ट, मजहबी लोग हैकल को छोड़कर सेकुलर कामों में मसरूफ हो गए। इतनी तो वफादारी थी रब के साथ। और इस नबी ने एक मिशन रखा, और वो मिशन क्या था? आओ हम यरूशलेम की तामीर करें ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न ठहरें। और मैं आपके सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूं, आओ हम कौमों की तामीर करें, आओ हम मुल्क पाकिस्तान की तामीर करें, आओ हम ऐसा मुआशरा तरतीब दें जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें मुआफ़ी हो, जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें एक दूसरे की फिक्र करना हो, ताकि क्राइस्ट का मिशन पूरा हो। और वो मिशन क्या है? लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। और आगे नबी ने क्या कंक्लूड किया? आओ हम यरूशलेम की तामीर करें ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना ठहरे। बहुत हो चुका, बहुत लड़ लिया हमने, मजहबी लोगों ने हमें बहुत वीडियो अपॉलॉजी, सर मैं खुद भी मजहबी हूं, हमने कौमों को लड़ाया एक दूसरे के साथ। हम बाज आ जाएं, किबले दुरुस्त कर लें और ये मिशन ले लें, आओ हम मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, आओ हम नफरतें ख़त्म करें ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना ठहरे। यही नबियों का मिशन है, यही खुदा का मिशन है। और इसलिए फरमाया कि तुम बहुत अजीम मखलूक हो। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी आसन तक़वीम सुम्मा रज़क़ना अस्फ़ला साफ़िलीन। मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब मकतब फ़िक्र के लोग एक जगह पर बैठे हैं, एक ही खुदा की इबादत करते हैं। कब किसी सूरत में आप कान यहाँ से पकड़ लें, आप कान सीधा सीधा शराफत से यहाँ से पकड़ लें। एक ही रब को मानते हैं, हमारे लिए बहुत सारे रब नहीं है, हमारा रब फर्क नहीं है। कभी वो कादर मुतलक खुदा है, कभी वो हय्युल कय्यूम है, कभी वो सादिकुल कौल है, कभी वो यहोवा के नाम से मासूम किया जाता है, कभी उसको अदोनाई कहते हैं, कभी उसको रहीम कहते हैं, कभी उसको करीम कहते हैं। उसकी हैसियत, उसकी इलाही हैसियत में किसी किस्म का फर्क नहीं है। मेरी दुआ है रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए, पाकिस्तान की सारी कौमों को इकट्ठा करे ताकि हमारा एक ही पैगाम हो, आओ हम पाकिस्तान को तामीर करें। दूसरी बात मैं बड़े वाज़ेह तौर पर, अच्छा मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटी से बड़ी नफरत है जी। आधा मिनट सर, अब माइनॉरिटी की तारीफ सुन लें। मैं 14 ज़बानें रवानगी से बोल सकता हूँ, लैटिन में, नॉर्वेजन में, स्वीडिश में, डैनिश में। उसका तर्जमा ये है, द पर्सन हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ मेजॉरिटी। माइनॉरिटी की तारीफ ये है, लफ्ज़ माइनॉरिटी, अक़लियत जिसका, अ पर्सन हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ मेजॉरिटी। जब हम ये सोचेंगे हमारी हैसियत एक हो जाती है। माफ़ कीजिए, हो सकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझसे एग्री ना करें, मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटी काफ़ी पसंद ही नहीं है। पंजाब का सूबा जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं, उन्होंने बनाया। हमने उतने ही खून बहाया गया जितना मेजॉरिटी ने बहाया। पाकिस्तान हम सबका है, आइए इसको तामीर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। माजूर चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, इसलिए मैंने डीजी साहब से कहा कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए ताकि मैं इस चीज़ की मुबारकबाद देख रहे हैं वो आपको जाना चाहिए।
मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को कि जिनकी काविश से यहाँ कराची में मुझे किसी के तकरीब मरकज हुई, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई दोस्त परवेज़ गिल साहब का कि जो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गए, इसलिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये सोच रहा था यहाँ बहुत सारी मैंने तकरीर सुनी, इलामा साहब यहाँ से तशरीफ को ले जा रहे हैं, और लेकिन मेरा भी ये ख्वाब है कि कभी कोई दिन ऐसा आए कि बेशक हम चाहते हुए भी तकरीर में इन जैसे फोरम्स पे सब बड़ा पसंद करते हैं ये बात कहनी कि मुझे सख्त नफरत है लफ्ज़ अक़लियत से, मिनॉरिटी से। अक्सर और बेशतर हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जो भी कोई साहिब इल्म आता है इस तरह के प्रोग्राम्स में तो वो यही बात करके चला जाता है, लेकिन हमें भी 75 साल इस मुल्क की तारीख के नशीबो फराज देखते देखते ये वक्त गुजर गया है कि ये लफ्ज़ अक़लियत जो है वो उससे हम जो है वो कोई जान नहीं छुड़ा सके। बेशक बहुत सारी सियासी जमातों ने बहुत सारा यहाँ पर काम किया, जिसमें हम जैसे जो सियासी वर्कर थे उनका भी बड़ा किरदार रहा, लेकिन बात ये होती है कि जब भी कभी दिवाली का कोई प्रोग्राम हो या क्रिसमस का प्रोग्राम हो वो इंटरफेथ हार्मनी प्रोग्राम में तब्दील हो जाता है। जो असल मकसद होता है उसी की बात ही नहीं करता। आज भी हम इंटरफेथ हार्मनी की बात करने पर सबसे ज़्यादा हमने जोर दिया हुआ है कि इंटरफेथ हार्मनी जो है वो कितनी ज़रूरी है। भाई जिनका प्रोग्राम है उनकी भी बात करें। मैं पिछले दिनों दिवाली के प्रोग्राम पे गया, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमारी पाकिस्तानियत को सब किया जाए या हमें जो सर्टिफिकेट दे, लेकिन हम सबसे पहले जो है वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लाते हैं, पहले तराना गाते हैं, पहले सर्टिफिकेट लेते हैं कि हम जो गैर मुस्लिम लोग हैं हम देखिए पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पर अपना मजहबी प्रोग्राम कर रहे हैं। इसको कौन ख़त्म करेगा? इससे कोई बात नहीं करेगा। हमारे मजहबी त्यौहार जो होते हैं जो उस खुशियों को दोबारा करने के लिए होते हैं वो इंटरफेथ हार्मनी का प्रोग्राम बन जाता है। कब वो दिन आएगा? ये ख्वाब है हमारा कि हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम होगा तो खालिस्तान क्रिसमस का प्रोग्राम होगा, दिवाली का प्रोग्राम होगा तो खालिस्तान दिवाली का प्रोग्राम होगा। यहाँ पर जो उलमा कराम आएंगे, जो दोस्त आएंगे, जो मेहमान आएंगे वो इंटरफेथ की बात करें। इसलिए अब और थोड़ी सी मैं सख्त बात करूंगा। हूँ सियासी वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बात करने से नहीं डरता, इसलिए कि इंटरफेथ हार्मनी बहसियत गैर मुस्लिम मेरी मजबूरी है। इंटरफेथ हार्मनी की बात करना मेरी मजबूरी है, इसलिए कि मेरी ज़रूरत है कि इंटरफेथ हार्मनी से हम समझते हैं कि शायद हम स्पेस क्रिएट करते हैं। इलामा साहब को शायद मेरी बातों पे वो थोड़ा सा वो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि इलामा साहब से भी मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। 2016 में जब मैं बैनुल मज़ाहब हमांगी का डिपार्टमेंट मेरे पास था तो हमने बड़ा काम किया, लेकिन उस वक्त भी राणा साहब आप तशरीफ फरमाएं, उस वक्त भी मेरा सवाल होता था और मेरा एक चैलेंज भी था कि इंटरफेथ हार्मनी मंदिर में प्रोग्राम हो जाता है, इंटरफेथ हार्मनी चर्च में प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन कभी बड़े भाई ने हाथ खोल के नहीं कहा कि आएँ मेरी मस्जिद में हम इंटरफेथ हार्मनी का प्रोग्राम करते हैं। वो आज भी सवाल है कि आए तो मजलिस हम जो है वो यहाँ भी रखते हैं इंटरफेथ हार्मनी की। तो बड़े भाई ने जब तक हाथ नहीं फैलाना उस वक्त छोटे भाई जो है वो इसी तरीके से अपने मजहबी प्रोग्रामों में ये अपनी मोहब्बत, ये गानगत, ये जगाने के लिए ये सारे एफर्ट्स करते रहेंगे कि भाई हमें भी जो सफ़ेद रंग आपने दिया हुआ है, सफ़ेद रंग जो दिया हुआ है इसकी कदर हम तो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसकी कदर नहीं करेंगे, जब तक आप खलूस, मोहब्बत, प्यार, जिस तरीके से हम यूके की मिसालें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सुनते हैं, खुश भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की,
जहाँ पर बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त जो है पॉलिटिकली अचीवमेंट जब उनकी देखते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। सादिक लंदन का मेयर बना, सबको बड़ी खुशी हुई, लेकिन कराची की मेयर पे कोई बात नहीं करेगा कि कराची जो बसाया ही गैर मुस्लिमों ने था, जिसकी तरक्की ही गैर मुस्लिमों ने की, बेरिंग कराची गैर मुस्लिमों को आज फिर दोबारा अमन का गहवारा बन गया, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं होगा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। ना ही इस सोच पे जो है वो हम शायद जो है वो उस तरीके से इकट्ठे हो सके। लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे फख्र है कि मेरी तरबियत एक ऐसी सियासी जमात से ने की है जहाँ रंग नस्ल मजहब की कोई बात नहीं होती, इसलिए मैं ये सारी बातें करता हूँ। इसलिए मैं ऐसे फोरम पर जहाँ मुझे बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, तो इसलिए अपना जो है वो दुख भी खुल के बयान कर सकते हैं। लेकिन खुशी होती है कि जब मेरी पार्टी, मेरी क़यादत, मेरी हुकूमत इस तरह के स्टेप्स लेती है जिससे यहाँ पर जो असल रूह थी पाकिस्तान की, एक आखिरी बात करूँगा फिर अपनी वो नशिस्त की तरफ बढ़ूँगा, कि जो असल रूह थी पाकिस्तान की, इलामा साहब अगर मेरी तरफ देखें, मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। जो असल रूह थी, देखिए ये मुल्क पाकिस्तान का जो वजूद हुआ था, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, तारीख को जैसे भी आप मस्त कर दें, जो भी हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, लेकिन ये मुल्क उस वक्त की मजहबी अक़लियत की जदोजहद से बना था। आप तारीख तब्दील करवा दें, जो मर्जी हमें पढ़ा दें, कह दें हमें कि इस मुल्क में अक़लियतें एक मुक़द्दस अमानत है, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि उस वक्त जो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी बड़े सगीर पाको हिंद में अक़लियत में थी। ये एक आइडियल मुल्क होना चाहिए था अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, लेकिन आज भी वो चैलेंजेस आज भी हमारे सामने हैं। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तोहफा है कि जिसने इन मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ को, जो रिलीजियसली मार्जिनाइज्ड होते हैं, उनको मेन स्ट्रीमिंग में लाने के लिए 5% जो है वो कोटा नौकरियों में दिया, कि जिनके पास वसाइल कम है, वो तालीम हासिल करते हैं, उनके नौजवान जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको 5% नौकरियों का कोटा दिया। आज पूरे मुल्क में जितने भी गैर मुस्लिम नौजवान हैं वो आपको असिस्टेंट कमिश्नर भी मिलते हैं, वो डॉक्टर्स भी मिलते हैं, वो इंजीनियर्स भी मिलते हैं, वो जजेस भी मिलते हैं, और बहुत सारे सिविल सर्विसेज में आपको नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हिंदू हमारे नौजवान, हमारे क्रिश्चियन नौजवान, हमारे सिख नौजवान पाकफौज तक पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। जब तक हम अफर्मेटिव एक्शन की तरफ बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बातें करना जो है उसका कोई फायदा नहीं है कि इस लफ्ज़ से मुझे नफरत है, इस लफ्ज़ को मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन क्या है उस पर बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत में आपको अमल नजर आएगा, किसी और सियासी जमात में नजर नहीं आएगा। मुझे तो जो साबका हुकूमत के जो कायद थे, जो साबिक वज़ीर आज़म साहब थे, उनकी आज भी वो बात जो है वो बड़ी तकलीफ देती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो तारीख में जिक्र है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो तारीख में जिक्र ही नहीं है। तो जहाँ पर सियासी क़यादत इस किस्म की हो, मुल्क का वज़ीर आज़म इस किस्म का हो, वहाँ पर ये कह देना कि मुझे इस जो है वो एक आइडियल सिचुएशन चाहिए, इस किस्म की रियासत चाहिए जो एक मॉडल के तौर पर थी, लेकिन एक इतनी बड़ी तारीख से आप अपना उसको मस्त करना चाहते हैं कि आज भी जितनी भी आप तारीख उठा के देख लीजिए, या तो वो कबल अज़ मसीह है या फिर बाद अज़ मसीह है, और आप उस शख्सियत के बारे में कहते हैं जो उनका तारीख में जिक्र ही नहीं है। तो उन सियासी जमातों का अमल और मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अमल आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। इस दफ़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं अपनी क़यादत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब का, कि जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और 26 दिसंबर को एज एन ऑप्शनल हॉलीडे मसीहों को क्रिसमस के बाद जो है वो एक दिन अपना त्यौहार मनाने के लिए 26 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया। तो ये सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा इत्तेफाक था। लेकिन असल चीज़ जो हमने हासिल की, आज मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि 26 दिसंबर असल में हमने छुट्टी ली थी, पुलिस साहब हासिल नहीं की।
हमने 3 छुट्टियां हासिल की इस एक छुट्टी की वजह से। 25 दिसंबर जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो यौम विलादत है, वो कोई भी दिन होगा हमें छुट्टी हुआ करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हम ये चाहेंगे कि ये रवायत एज ऑप्शनल हॉलीडे हो, 26 दिसंबर को आपकी छुट्टी होगी। और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम की खिदमत करती रहेगी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। 27 दिसंबर को शहीद बीबी की बरसी की छुट्टी होगी। तो 3 छुट्टियां होंगी आपकी, 25, 26, 27। ये दिया है तोहफा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूंगी ऑनरेबल वीर जी कोहली, हु इज़ एडवाइज़र टू सीएम सिंध, और जो कि आज की इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर भी थे, कि वो आएँ और आज की तकरीब के क्लोजिंग रिमार्क पेश करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर वीर जी कोहली विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारे बड़े नूर साहब हमारे उस्तादों में शामिल हैं, वो काशिफ भाई और वाहिद संग्रासी साहब भी हमारी। यकीन करें कि इनको एक तो होता है किसी को मुबारकबाद देना, लेकिन मुबारक से आगे सलाम पेश करना, इसलिए कि ये कोई तीसरा प्रोग्राम है। और फिर मैंने कल पूछा कि यहाँ तक ख़त्म हो गया, कह रहा नहीं ये पूरा हफ्ता चलेगा क्रिसमस का। आखिरी प्रोग्राम उमरकोट में होगा, जो न्यू ईयर भी होगा और क्रिसमस भी होगा। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई ने जो MPA साहब ने बात की, उसको शायद पूरी खबर ना थी, उसको शायद आधा इल्म था उसकी नॉलेज में, कि ये प्रोग्राम जो क्रिसमस के लिए इबादत हुई 25 तारीख को, हम सब ने मिलकर जहाँ जहाँ थे अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जहाँ जहाँ करीब हम थे अपना चर्च में, वहाँ बैठ के हमने वो इबादत करते रहे, हम उसमें शरीक रहे, वो किया। इस पर रवादारी की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम ही रवादारी के लिए मेरे मुसलमान भाइयों ने रखा है। यहाँ पे तो बात ही यही होनी चाहिए थी। और ये जो शरीक हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल इसमें 10% क्रिश्चियन होंगे, बाकी मेजॉरिटी 80% या 90% हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं। ये खूबसूरती है सिंध की। मैं क्योंकि बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, हम लोकल बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, ज़मीन की बात करेंगे। हम छोटे से समाजी और सियासी वर्कर हैं, और फिर कंफ्यूज भी हैं बुल्ले शाह की तरह, की जाना में कौन, ना में बेद मजदा पाया, ना में आदम हवादा जाया, ना में अपना ना तराया, ना विच जागन ना विच सोन, की जाना में कौन, ना में मोमिन विच मसीता, ना में विच कुफर दिया रीता, ना में पाका विच पलीता, ना में मूसा ना फिरौन, की जाना में कौन। वो मेरे सिख भाई ने बात की, तो मैं उस वक्त में जहन में सोच रहा था कि नानक साहब को मैं पढ़ा तो हिंदू मुस्लिम सिख आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे खून के प्यासे थे, और वो कह रहे थे कि हिंदू कहाँ तो मारे वना, मुसलमान भी ना, 5 तत्व दा पुतला नानक मेरा ना। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.